Hi everyone, a very good evening and a warm welcome to this session. Once again, welcome back guys. And आज हमारा रेशियो का सेकंड पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशियोज होते हैं उनको कंबाइंड करके एक सिंगल रेशियोज में कैसे लिख सकते हैं। ऑल्सो कुछ रेशियोज होते हैं हमारे पास गिवन एंड कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं रेशियो का यूज करते हुए उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेंस इनकम और सेविंग्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को एंड आपके सारे डाउट्स को आज हम लोग यहाँ पे चलिए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अभिजीत सिन्हा एंड दिस इज द लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट माई दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक जो है इसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं प्रेप विद एएस के। आपको सर्च करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है सो दैट वहां पे एवरी डे का शेड्यूल आपको मिलते रहेगा एंड शेड्यूल के साथ साथ आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। Now moving ahead, this is the timetable guys schedules that we are following for 2022 and this is for the 2021 parents. Moving ahead, this is the batch that already started on 3rd and 6th for 2022 parents. Go and enroll now in this. 21 those who are preparing for this snap targeting snap का form fill करने की सोच रहे हैं और fill कर दिया है, then in that case you should go and enroll in this batch guys. For 2021 parents, I must suggest you go for the 3 months plan. 2022, just CAT exclusively go for the 12 month and CAT and OMIT parents go for the 18 months. Do not pay this much amount. Get a 10% off, right? Use my code which is Sinha 10. Now in the Iconic, there is a much more benefit that you will get from the plus. Obviously, all the benefits of plus you will get it here, and additionally, you will get one-on-one doubt solving, one-on-one discussions, and one-on-one live mentorship according to your time, right? Now, should go with the 12 months, 24 months, or 6 months, depending upon your need. Use my code SINHA10 and get a 10% off, 100% for sure. So don't pay this much. Pay with it is नॉट ओनली फॉर दिस, ठीक है, 6 मंथ्स हो, 24 मंथ्स हो या फिर 12 मंथ्स हो, किसी के लिए आपको जो अमाउंट लिस्टेड है यहाँ पे वो पे करने की जरूरत नहीं है। यूज द कोड एंड आई विल द 10%। मूविंग अहेड फॉर 2021 एस्पायरेंट, आई मस्ट टेल यू गाइस दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू कि जो 4 मॉक्स थे अभी उसमें एडिशनली एक और मॉक ऐड हो गया है एंड ऑन 14th of November you also have one mock. Sure, one mock is left. Go and enroll and give this mock guys. Moving ahead, you know this is the ratio, right? And हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी, how we can calculate it. So there is a two ways to calculate. The first I'm using that a is to b is 2 is to 7. So let's, instead of writing anything, a को 2 और b को 7 लेते हैं and let's check out कि क्या ratio आ रहा है. So 2 into a which is 2 upon 3 into b which is 7 and I'm getting here 4 by 21, right? Now let's say कि अगर हम variables लेके करते हैं, because you know that a is to b is written 2 is to 7, this does not mean that a is definitely 2 and b is definitely 7. No, we cannot say this. However, we can definitely say if and only if a is equals to 2, then b will become 7. That's it, 100% for sure. Now let us say अगर हम यहाँ पे variables की बात करते हैं तो then we can say कि yeah, a will be definitely 2 times of x and b will be definitely 7 times of x, because whatever the variables value a will take, b will take the same value. Now using this, if you want to calculate 2a is to 3b ratio, you can write 2 into 2 times of x is to 3 into 7 times of x. Now x and x will get cancelled out and you will get 4 is to 20. And yeah, yes, exactly, absolutely 100% correct, no problem. ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो ग्रेट। अब आपको समझ में लग रहा होगा कि इसमें बिना x किए हुए भी कर सकते थे और x के साथ भी कर सकते थे। तो अगर ऐसा है तो कैसा है, तो हम एक काम करते हैं, चलो चेक करके देखते हैं आगे, अगर जहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं। तो अभी अपन यहाँ पे कैसे चेक करना है, तो आप देखो, यू कैन सी कि a यहाँ पे है एंड उसके साथ वेरिएबल की पावर बनाएगी, b है उसके साथ भी वेरिएबल की पावर बनाएगी। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या हर जगह पे रेशियो में वेरिएबल्स की पावर सेम आ रही है, तब आप बिना वेरिएबल के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आप चेक करें
तो यहाँ वेरिएबल्स की पावर 1 एंड यहाँ पे 1 दोनों मल्टीप्लाई होके वेरिएबल्स की पावर 2 आएगी एंड वो सेपरेटली यहाँ पे आपको वेरिएबल्स की पावर 2 मिल रहा है, राइट, विच मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे हम वेरिएबल्स लेके करें या विदाउट वेरिएबल के आंसर्स डेफिनेटली सेम आने वाला है। तो चलो यहाँ बिना वेरिएबल्स के करते हैं, आप वेरिएबल्स के साथ ट्राई करो, आर वी both of us answers is matching or not, एक बार ट्राई करो। So what I will do, this is 2 into x that becomes 3 into y that becomes 5 upon x square that is 3 square 9 plus y square that is 5 square 25. So this becomes 30 upon 34 and that we can say 15 upon 17. This is your answer. Yes, absolutely. अब आपको पता है आप एक वेरिएबल लोगे तो यहाँ क्या होगा, वो उसका स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, दैट विल गेट कैंसल, राइट। नाउ आगे के क्वेश्चंस में देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा देखो, यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे तो पावर विल बी 1, हियर वेरिएबल पावर विल बी 1 एंड हियर वेरिएबल मल्टीप्लाई होके पावर विल बी, नहीं कटेगा, राइट। तो अगर आप बिना वेरिएबल के बनाएंगे आंसर्स गलत है, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे आंसर्स क्या होगा, दिस इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कभी भी ऐसा आया तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। बट लेट मी टेल यू कैसे इस चीज को हमें करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स से x is 3 times of and that y becomes 5 times. Are you getting my point? x is 3 times of a and y becomes 5 times of, जैसे ही x की वैल्यू ये मिल गई और y की वैल्यू, ओके, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन b हियर, इट शुड बी a, सेम वेरिएबल्स आएगा बच्चों। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो दिस इज 5 into x that is 3 times of plus 3 into y that is 5 times of upon x into y, this is 3 times of a into 5 times of, इसका मतलब क्या है हमारे पास, दिस इज 15 टाइम्स ऑफ ए आ रहा है हमारे पास, प्लस दिस इज आल्सो 15 टाइम्स ऑफ ए अपॉन 15 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो आप कैंसल आउट करोगे तो आपको न्यूमरेटर पार्ट में 2 और डिनोमिनेटर पार्ट में, बिकॉज दिस इज 30 तो 15 टू एंड ए कट गया, डिनोमिनेटर का ए बच गया। अब ये 2 is to a, 2 upon a आ गया, a which is a variable keeps on value will keeps on vary and ratio will also vary। तो अगर फिक्स रेशियो ही नहीं आया तो हाउ वी कैन से कि एग्जैक्टली ये वैल्यू रेशियो होगी या फिर वो रेशियो होगी, तो ऑब्वियसली वी कैन से ना कि आंसर्स विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन, एज सिंपल एज दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ऐसे ही यहाँ पे चेक कर सकते हो, इससे ये पता चल जाएगा कि आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा या नहीं। अगर आंसर्स कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे कि इस क्वेश्चन में। और अगर आंसर्स कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं, कोई आंसर्स आएगा जैसा प्रीवियस स्लाइड्स में आया था, तो वहां पे हम डायरेक्टली जो रेशियोज में गिवन है उसको एज ए वैल्यू पुट कर लेंगे, वहां पे वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है फिक्स ही आने वाला है, राइट। तो आगे यही अप्लाई करना है। नाउ मूविंग अहेड, अब यहाँ आपके पास देख रहे हो कि दो रेशियो है, उनको कंबाइंड एक सिंगल रेशियो कैसे बनाए, दिस इज x is to y एंड y is to z, इनको x is to y is to z कैसे बनाया जाए। रेशियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीआई में आता है, टाइम एंड वर्क में आएगा, एवरेज मिक्सेस एलिगेशंस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में आएगा, आप ज्योमेट्री सॉल्व करोगे वहां आएगा, आप नंबर सॉल्व करोगे वहां आएगा, आप अलजेब्रा सॉल्व करोगे वहां आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे वहां आएगा। तो रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीट क्वांट के हर एक जो है वो टॉपिक में यूज आ जाता है, एज वेल एज इन डीआई आप एलआर सॉल्व करोगे वहां भी रेशियो आ रही बात समझ में। एंड ये जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बाकी के जितने भी जो प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किए, जो इस स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया, इस लेक्चर्स में ये दोनों बेसिक है, कंप्लीट क्वांट्स में इसका एप्लीकेबल है, इसको कंप्लीट क्वांट्स में इसकी यूज। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक्सेस टू जेड भी निकालना था। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सबसे पहले बच्चों आप एक्सेस टू जेड निकालो बिकॉज दिस इज द क्वाइट इजियर वे, आपको समझ में आएगा कैसे वन लाइन में आप निकाल सकते हो। क्या ध्यान में आपको रखना है, यहाँ x to z का न्यूमरेटर पार्ट और एंटीसीडेंट वी आर सेइंग कि x है, कॉन्सिक्वेंस बिकम z। अब देखो कि कौन सा ऐसा रेशियो है जिसका अगेन आपको एंटीसीडेंट x दिख रहा है, यू विल फाइंड आउट x is to, तो अब हम x is to z जो निकालेंगे उसको ऐसे ही निकालेंगे, x अपॉन y, ये कर दिया हमने, राइट। जैसे ही x अपॉन y हमने कर दिया, फिर आप देखें कि यहाँ डिनोमिनेटर में आपको z चाहिए था और यहाँ है y,
सॉरी बच्चा, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, z चाहिए, और यहाँ है y। तो अब देखो कौन सा ऐसा रेशियो है जहां पे y एज ए एंटीसीडेंट, यू विल फाइंड आउट कि y यहाँ, तो हम लिखे y अपॉन, देखोगे y y कट जाएगा एंड यू विल गेट x अपॉन। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करें बच्चों, तो x इज टू y की वैल्यू लिख दो, दैट इज 3/5, एंड y इज टू z की वैल्यू लिख दो, दैट इज 7, एंड यहाँ हेंस आपके पास आ गया 20/20। तो जो x इज टू z थी उसकी रेशियो आपको मिली 1:2, दिस इज योर, बड़ी ही आसानी से आपके पास आ जाएगा। कभी भी अगर आपके पास चाहे कितने भी 3 4 5 रेशियोज क्यों ना दिए हो, बट एक का एंटीसीडेंट कहीं का ले रहा है और एक का कॉन्सिक्वेंट कहीं का ले रहा है, आप बस वही फोकस करके आइए, अप्लाई कर दो, डेफिनेटली आप एक लाइन से 2 लाइन में आंसर 100% फॉर, ट्राई करके देखना। नाउ अब यहाँ पे एक और पार्ट बचा हुआ है हमारा, क्या है ये पार्ट, तो x इज टू y इज टू z वाला कैसे निकालेंगे इसको, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपके पास जो भी रेशियो जितने भी लिखे हुए हैं उन सब का सबसे पहला पहला टर्म लिखो। तो यहाँ पे इस रेशियो का पहला टर्म 3 है, इस रेशियो का पहला टर्म 7, तो आई मस्ट राइट इट एंड देन आई मस्ट राइट, ओके, 3 एंड 7। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, तो सेकंड सेकंड टर्म लिखना है, दैट इज 5 एंड, तो यहाँ पे हमने डैश दिया, दिस इज 5 एंड डैश दिया, आ रही बात समझ में। अब क्या करना है, आपके पास कितने डिफरेंट रेशियो हैं ये देखना है। तो एक रेशियो 3:5 है, दूसरा रेशियो 7:4, दोनों रेशियो आपको मिल, दो ही रेशियो है, तो इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट दो एलिमेंट्स को आपको, फर्स्ट दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे हम x इज टू वाई इस डालेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई कैन राइट इट एज, ओके। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, तो आपको देखना है कि इन दोनों रेशियो में कॉमन टर्म्स क्या है। तो एज यू नो यहाँ पे आपके पास y और यहाँ पे भी y कॉमन टर्म्स है, अगर दोनों में ये एक एक कॉमन है तो आपको क्या करना होगा, तो आप इनको एक नंबर यहाँ से हटा दे और एक नंबर आगे की तरफ बढ़, अब 7 दैट इज, फिर आपके पास ये 7 कट जाएगा एंड देन 5 अब आप देखो तो कि x इज टू z की रेशियो यहाँ पे क्या है, 21:20, और तो बट मुझे ये कैलकुलेट करना है तो ये करने की जरूरत नहीं है, तो एट लास्ट आ जाएगा। बट अगर मुझे सिर्फ यही कैलकुलेट करना था तो इतना लंबा करने की क्या जरूरत, बिल्कुल सर, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, बट इतना ही में नहीं, एक और ट्राई करते हैं जहां पे 2 से ज्यादा रेशियो, ठीक है, फिर वहां देखते हैं कि क्या ये चीजें वर्क कर रही है, क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, बट आई मस्ट टेल यू, सबसे पहले तो मुझे बताओ तो क्या आप a टू d की वैल्यू फटाफट एक लाइन में बता सकते हो, व्हाट विल बी a अपॉन d, क्या करोगे आप, अगर आपको a टू d निकालना है आप क्या करोगे, सिंपल है, a टू d निकालना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखो a बाय b, यहाँ a न्यूमरेटर में कहा था, मिल गया a बाय b, अब b डिनोमिनेटर में आ गया, नहीं चाहिए, वो न्यूमरेटर में कहाँ पे है, यहाँ है, लिख दो b बाय c, अरे यार c भी नहीं चाहिए मुझे, वो कहाँ न्यूमरेटर में है, यहाँ, लिख दो c बाय, देखो सब कट के a बाय d मिलेगा। अब ये आपके पास आ गया, दिस बिकम्स 5/9 into b by c becomes 1/3 into c by d becomes 6/6, 3 this is 2 times, ये कट सकता है, अब और नहीं कटेगा, this becomes 10/63 and yes this is your answers बच्चों, yes exactly, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अभी आगे हम जब a is to b is to c is to d यहाँ निकालेंगे ना, तो आप देखना यही रेशियो आपके पास आएगी। कैसे लिख रहा था हम लोगों ने प्रीवियस जो स्लाइड्स में क्वेश्चंस किए, सबसे पहले क्या बोला कि आपको जितने भी रेशियो दिए हैं उनका फर्स्ट 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 टर्म, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट इज 5, फिर फर्स्ट क्या है 1, फिर फर्स्ट क्या है, फिर आपको सेकंड टर्म को लेना है सब, फिर थर्ड टर्म को, बट यहाँ आप देखेंगे कोई सच ऐसा सेकंड टर्म नहीं है, जो लास्ट है वो ही है, दो ही है यहाँ पे। तो वो क्या है आपके पास 9 3 एंड 6, तो आई मस्ट राइट इट 9, देन आई मस्ट
then I must write it 93 and 7. अब आपको क्या करना होगा, तो आपको प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने ये डिस्कस किया था कि बच्चों आप जितने रेशियो है, डिफरेंट रेशियो है, उतने टर्म्स को मल्टीप्लाई करें स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। यहाँ क्या होगा, तो 3 रेशियो है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड आई मस्ट राइट इट लाइक दिस ओनली 5 into 1 into 6, राइट। फिर क्या करता है, तो मैंने बोला कि जो कॉमन टर्म्स है वो कितने हैं वो देखो, तो आपको एक एक मिलेंगे, a is to b, b is to c एंड c is to d, एक एक। तो वो एक टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड से कम करते जाओ, छोड़ते चले जाओ, राइट हैंड साइड आगे बढ़ते चले। तो आप क्या बोलोगे, 5 नहीं लेंगे, तो 169 लोगे, 1 इंटू, फिर 1 हटा दो, फिर 693, तो 6 इंटू 9 इंटू 6 हटा दिया, फिर 937, फिर 9 इंटू 3, now 3 and 3 will get cancelled out, फिर further 3 this is 2 times and 3 this is 2, simple। तो आपको रेशियो यहाँ पे क्या मिल गया, 5 2 जा 10 is 2, 9 2 जा 3 से कैंसिल आउट किया ना, 3 3, हाँ, this becomes 18 and this becomes 54 and this becomes, are you able to see कि सबसे फर्स्ट A और सबसे लास्ट D is 10:63, राइट। तो जब भी आपके पास सिर्फ 2 का रेशियो निकालना हो तो आप इसी तरीके से सॉल्व करें, मच इजियर। और अगर सारे 2-3 डिफरेंट रेशियोज हमारे पास गिवन है और उनको एक सिंगल रेशियो बनाना है, ठीक है, जैसे आप वहां पे रेश वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, लीनियर रेश, तो वहां पे आपको ये चीजें काफी हेल्प करेगी, ये कि 2-3 रेशियोज होते हैं उनको मिला के एक सिंगल रेशियो निकालना हो, तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे आपको वर्क करेगा ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा जल्दी कर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे आपको याद होगा बच्चों, मैंने वैदिक मैथ्स का जो क्लास था उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर था, मैंने इवन ऑड पे लेक्चर, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों को लग रहा था सर आती है बट ये नहीं ये वो, अभी देखो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको आती है, आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये क्वेश्चंस आप कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर, ठीक है। कैसे, क्या बोल रहे हैं, दिस इज 3x² 3y² 10 टाइम्स ऑफ, पहले एक बार यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ y² दैट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ x इनटू, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये नंबर पक्का इवन आएगा क्योंकि 10 इवन है, वो एक्स वाई पे डिपेंड नहीं करता, एंड ये दोनों एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि 3 ऑड है, यहाँ पे 3 ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो क्या हम ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं सम इवन आना चाहिए, तो क्या कंडीशन है, या तो दोनों से ऑड आना चाहिए सो दैट सम आपके पास इवन आ जाए, या नहीं तो दोनों एक्स और वाई को इवन होना चाहिए सो दैट अगेन सम हमारे पास इवन आ जाए, ये दोनों में से कोई भी कंडीशंस पॉसिबल होनी चाहिए, एक्स वाई इधर बोथ ऑड और बोथ इवन। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो दिस इज ऑड इवन नो, ऑड इवन नो, ऑड ऑड यस, ऑड इवन नो, दैट मींस व्हाट ऑप्शन सी इज द आंसर, डेफिनेटली दैट्स इट, यू गॉट योर आंसर। कुछ बच्चे यहाँ क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करके लेके आ सकते हैं कि अगर हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे बोथ साइड, बट चूंकि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़े नहीं है तो इसलिए मैं वो उस मेथड पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। दूसरी चीज की ऑप्शन चेक कर सकते थे, तो ऑप्शन चेक करने के लिए ऑप्शन सी तक पहुंचने के लिए भी आपको 2 ऑप्शंस चेक करके तीसरा ऑप्शन चेक करोगे, सेटिस्फाई करेगा तब मार्क करो, लेकिन इवन ऑड का कॉन्सेप्ट अगर आप लगा दिए तो आप यहाँ पे इजी वे में उसको मार्क कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाता हूँ, जैसे दिस इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर बोला ना, अब मैं एक बात और भी बता दूं आपको, ये 1:3 और 3:1 दोनों पॉसिबल है, बट ऑप्शंस में 1:3 है तो वही आंसर्स करेंगे। x का स्क्वायर दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू y का स्क्वायर दिस इज 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 इंटू, now this is 3 plus 3 square into 3 becomes 27 that is equals to 30। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है, that 30 is equal, अगर ये चीजें आपको मिल रही है इसका मतलब क्या है बच्चों, ऑल सेट, कुछ करने की अब आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, आगे आप सॉल्व करते तो सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इवन ऑड वाला आप ध्यान में रखें, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां कैलकुलेशंस में आपको इससे बहुत मदद, और अब
थोड़ा इजी वे में कर पाएंगे वहां पे और टाइम भी सेव कर पाएंगे। ओके, तो चलो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चंस। दिस वन क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, दैट द इनकम ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 and expenditure are in the ratio of 1:2. If each saves rupees 500, then P's income. अब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँ, जब बच्चों यहाँ पे दो रेशियो, सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम हमारे पास जो है, अगर मैं उसमें अपने एक्सपेंडिचर्स क्या हुए ये पता है और उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एक्सपेंडिचर को, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, आपको सेविंग्स में। अब आप यहाँ पे देखें तो जो रेशियो दिया हुआ वो पहले ले लेते हैं। तो P का इनकम अपॉन Q का इनकम, ये हमारे पास नोट। ओके, P's इनकम अपॉन Q। अब मैं इसको यहाँ पे अगर इक्वेट करना चाहूँ तो वेरिएबल्स में, तो P का इनकम लेट्स से आई एम राइटिंग एज x एंड Q का इनकम लेट्स से आई एम राइटिंग एज 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई हो गया दोनों में। आपको एक यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स के भी रेशियोज, P का एक्सपेंडिचर अपॉन Q का एक्सपेंडिचर, दैट इज 1/3। आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर कभी आपके पास ऐसे गिवन है कि P का इनकम का रेशियो, Q का, P और Q का एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो जब आपसे कोई रेशियो पूछेगा भी ना, तो वो न्यूमरेटर में P का पार्ट आएगा और डिनोमिनेटर में Q का पार्ट आएगा। जिस तरीके से गिवन होता है ना रेशियो, नहीं लिखा हुआ है कुछ मतलब उसी तरीके से वो पूछे, उल्टा करेंगे गलत आएगा। यहाँ हम करते हैं तो P का एक्सपेंडिचर। अब यहाँ मैं सेम वेरिएबल नहीं मल्टीप्लाई कर सकता क्योंकि ये इनकम का और ये एक्सपेंडिचर का अलग अलग रेशियो है। एक साथ अगर गिवन होता कि P's एंड Q's इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज दिस तो हम वहां पे सेम वेरिएबल्स ले, बट यहाँ नहीं ले सकते, डेफिनेटली नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं Q का एक्सपेंडिचर, तो दिस बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ। ओके, नाउ अब यहाँ पे सेविंग्स दिया हुआ है कि ईच सेव्स रुपीज 500 एंड दोनों की सेविंग्स क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं, तो दिस इज x माइनस वाई दैट बिकम्स 500 सेविंग्स। हियर दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y, दैट इज ऑल। क्वेश्चन में पूछा p इज इनकम मतलब x की वैल्यू, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो बन जाएगा क्या, मल्टीप्लाई कर दो, you will get 3x minus 3y and that is equals to 15. Here this is 2 times of x minus of 3 times of y is equals, अब ये हमारे पास माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस, तो ये मेरा कट गया और ये 3 माइनस 2 बिकम्स x, दैट इज इक्वल्स टू, सिंपल। तो x की वैल्यू हमारे पास, अच्छा सॉरी, 1500 माइनस 500 दैट बिकम्स 1000, पार्डन मी बच्चों, दिस विल बी 1000। तो इसका मतलब क्या है, p का इनकम मेरे पास क्या आ गया, 1000। वी कैन से कि दैट p's इनकम is 1000 and yes this will be your correct answer, 100% for sure। तो जब भी आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा आपको ऐसे ही ट्राई करना है। एंड आई मस्ट टेल यू कि प्रीवियस सेशंस और इस सेशंस में जो भी आपको रेशियोज में दिक्कत हुई हो, वो हम जब लाइव आएंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे एंड वहां पे आपकी सारी डाउट्स को, ओके बच्चों। मूविंग अहेड, let us try these questions। बोल रहा है divide rupees 1360 among P, Q and R such that P gets 2/3 of what Q gets and Q gets 1/4 of what R gets। Now the share of R is, सिंपल है, बट आप एक चीज यहाँ पे समझे कि इसको कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है कि दैट P is equals to 2/3 ऑफ, तो P by Q हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3 and we can say कि P is to Q is right। Similarly Q gets 1/4 of what R gets, तो Q हमारे पास जो है that is Q is equals to 1/4 of R।
एंड यहाँ पे Q by R अगर हम करते हैं तो दैट बिकम 1/4 एंड अगर हम यहाँ पे Q is to R करते हैं तो दैट बिकम 1 एज सिंपल। अरे बस समझ में ना, तो क्वेश्चन वाज नाउ द शेयर ऑफ R। तो आपको तो पता है कि तीनों को कंबाइंड दैट इज P प्लस Q प्लस R, ये हमारे पास 1360 नो, बट R इंडिविजुअली कैसे निकाल सकते? तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ये काम करना होगा कि हम इन दोनों रेशियो को कैसे कंबाइन करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट फर्स्ट लिखेंगे जैसा हमने आपको अभी बताया था, तो 2 देन 1 एंड देन 3 एंड देन, फिर आपका पी क्यू आर का रेशियो आ गया, पी इज क्यू इज टू। तो फर्स्ट दो टर्म्स को 2:1, फिर 1:3 एंड फिर 3:4 दिस। तो हमारे पास आ गया पी क्यू आर की वैल्यू, हमारे पास आ गया क्या, दिस इज 12 अपॉन 2 + 3 5 + 12 इज 17 into 13, कैंसल आउट कर दो 8 टाइम्स में एंड दिस बिकम्स 80 एंड आर बिकम्स 900, एज सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? तो 960 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी और निकालना होता आप डेफिनेटली। तो आई होप कि आज जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपको समझ में आया है। अगर इन केस कोई भी कंफ्यूजन्स रहा है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और इन द ग्रुप, और पर्सनली यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, जिस जिस क्वेश्चंस पे वो क्वेरीज होंगे आपके, उन उन क्वेश्चंस को हम लाइव सेशंस उस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मेक श्योर कि आपके जो भी क्वेरीज आ रहे हों वो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलते हैं आगे। And I must tell all of you, thank you for attending this sessions till end. Like these videos, share with your friends, subscribe this channel, and press the notification bell. And when you are going for the app and class आपको app पे attend करना है, I must tell you guys, use this code and unlock all the free sessions on it. Also use this code to participate in the combat, in the AIMT test, and use this code for the subscriptions as well. Whenever you use this code for the subscriptions, you will get a 10% off. To use this code, get 10% off and also share this code with your friends. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Keep learning. Happy learning.